Today we are going to start a new chapter, that is quadrilaterals. It is chapter number 8 in class 9. In some of the books it may be chapter number 7, and we are going to start this chapter with question number 1. We know quadrilateral is a four-sided closed figure. Four-sided closed figure. That one is a quadrilateral. Quadrilateral में हमेशा four sides होंगी. Now, what is question number 1 of exercise 8.1? Firstly, we will start with the exercise and then we will conclude with the theorems of the chapter. Angles of a quadrilateral are in the ratio. Ratio of angles is given. Ratio is 3, 5, 9 and 11. This one is the ratio of angles of the quadrilateral. Find all the angles of the quadrilateral. हम सारे के सारे angles find करेंगे. जब भी हमें रेशियो गिवन है, we suppose the angles. Now how to suppose the angles? Suppose let the angles of quadrilateral be, this one is the ratio. इसी रेशियो को एक फॉर्म देंगे 3x, 5x, 9x and 13x. Very simple question. Suppose this one is the measurement of angles. x की फॉर्म में मैंने expected 3x, 5x, 9x, 13x. ये मैंने angles को suppose किया. Now using the angle sum property of a quadrilateral, पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया sum of three angles of a triangle is 180 degree. In the same way, quadrilateral has four angles and sum of four angles of the quadrilateral is always 360 degree. Now these are the four angles of the quadrilateral. Therefore, sum of angles 3x plus 5x plus 9x plus 13x equal to 360. This one is angle sum property of quadrilateral. That is sum of four angles of a quadrilateral is always 360 degree. इन सबको ऐड करेंगे 30x 360 degree. x will be, now 30x means 30 multiply x. 30 को अगर मैं यहाँ लिखूंगा, मैं डिवाइड में लिखूंगा इसको. x is 12. x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 12. Now we will find each angle. Therefore, angles of quadrilateral क्या होंगे angles? एक था 3x. 3x means 3 multiply x. x is 12, so it will be 36 degree. Second one 5x. 5 multiply x, again x is 12, 60 degree. Third one is 9x. 9 multiply x, x is 12, 108 degree. And last one is 13x. 13 multiply x, 156 degree. These are the four angles of the quadrilateral. ये हमने फाइंड कर लिए angles of the quadrilateral. Now next question. We will solve question number 2 now. Chapter is again same, exercise is same, that is 8.1. And question number 2. If the diagonals of a parallelogram are equal, show that it is a rectangle. If the diagonals of a parallelogram are equal. एक parallelogram के diagonals equal है. जब parallelogram के diagonals equal होंगे तो it means we are given a parallelogram. एक बार फिर सुनेंगे. If the diagonals of a parallelogram are equal, मतलब एक parallelogram के diagonals equal है. It means हमें given क्या है? एक parallelogram given है, उसके diagonals given है and diagonals are equal. This one is given. Show that it is a rectangle. हमें prove करना है कि ये rectangle है. तो इसलिए जब rectangle prove करना है, हम इसकी shape, शुरू से ही हम इसकी shape rectangle की रखेंगे. Parallelogram is given.
हमें इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है, दैट्स वाई मैं इसको रेक्टेंगल शेप में ही बनाऊंगा। This one is a parallelogram and diagonals are equal. ये भी गिवन है, diagonals of a parallelogram are equal, तो diagonals भी ड्रॉ करेंगे इसके। We know parallelogram or any quadrilateral can have two diagonals. This one opposite vertices को join करके we get diagonals. These two are the diagonals of the parallelogram. एक बार फिर सुनेंगे। If the diagonals of a parallelogram are equal, it means we are given a parallelogram. Let it be ABCD with diagonals AC and BD. तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले what is given. We are given a parallelogram ABC with AC equal to BD. This one is given. Question क्या है? If the diagonals of a parallelogram are equal, it means we are given a parallelogram with diagonals equal. Equal diagonals है तो AC equal to BD. क्या प्रूव करेंगे? ABCD is a rectangle. Now proof. Firstly, one thing should be very clear about the chapter. इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस होंगे जो बहुत लेंथी होंगे, आपकी नोटबुक पे 2 पेजेस तक भी वो सॉल्यूशंस जा सकते हैं। तो एक बात का ध्यान रखना है कि क्रैम करके ये चैप्टर्स नहीं चल सकते। आपको पूरे के पूरे स्टेप्स को समझना है कि ये स्टेप क्यों ले रहे हैं। हमें देखना है व्हाट इज गिवन, व्हाट इज टू प्रूव, नाउ हाउ टू प्रूव। जो प्रूव करना है उसके लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, क्यों लेने हैं, तभी जाके आप इसे प्रूव कर सकेंगे। नाउ हमें प्रूव करना है ABCD इज अ रेक्टेंगल। व्हाट इज गिवन, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो पहले ये देख रहे हैं कि पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में डिफरेंस क्या है। हम पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल कैसे प्रूव करेंगे। यू नो, सपोज ABCD, अगर इस क्वाड्रिलेटरल में ये कहता हूँ AB इज पैरेलल टू CD, अगर मैं ऐसा कह दूँ AB is parallel to BC, that is both the pairs of opposite sides are parallel, अगर मैं ऐसा मान के चलूँ then ABCD is a parallelogram, but ये रेक्टेंगल शेप नहीं है। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में सिमिलरिटीज भी हैं। नाउ सपोज दिस वन इज अ रेक्टेंगल, अगर मैं ये सपोज करके चलूँ इट मीन्स इसमें भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे, बोथ द पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। दिस इज सिमिलरिटी बिटवीन रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम, बट डिफरेंस क्या है, रेक्टेंगल में ईच एंगल इज 90 डिग्री एंड इन पैरेललोग्राम ईच एंगल 90 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे हर एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ABCD इज अ पैरेललोग्राम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमें प्रूव करना है ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो अगर ये पैरेललोग्राम है इट मीन्स अपोजिट साइड्स ऑलरेडी इसकी इक्वल हैं। AB and BC are equal, AD and BC are equal. अगर ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल है, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल एंड पैरेलल। लेकिन हमें इसे रेक्टेंगल प्रूव करना है, तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में ये जो सिमिलरिटी नहीं थी ये भी हमें यहाँ प्रूव करना है। हमें प्रूव करना है ईच एंगल इज 90 डिग्री। अगर ऐसा प्रूव कर ले देन वी कैन से दिस वन इज अ रेक्टेंगल। तो ये ध्यान रखें, हमें फोकस कहाँ करना है, हर एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना है, वही करेंगे यहाँ पे। नाउ वी नो डायगोनल्स आर इक्वल, दिस इज गिवन। अगर डायगोनल्स इक्वल हैं, पहले मैं वो दो ट्राइंगल्स कंसिडर करूंगा जिनमें दोनों डायगोनल्स आते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, एक बात का ध्यान रखना है, कोई भी दो एडजेसेंट एंगल्स, अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इन दोनों एंगल्स का सम भी 180 डिग्री होगा। ये हम पढ़ चुके हैं पहले। तो अगर मैं कोई दो एंगल्स इक्वल प्रूव कर दूँ
सम ऑफ दीज टू इज सपोज 180। अगर मैं ये प्रूव कर दूं इन दोनों का सम 180 है, उसके बाद इन दोनों को अगर मैं इक्वल प्रूव कर दूं, मैं ये प्रूव कर देता हूँ कि दीज टू एंगल्स आर इक्वल, इट मीन्स एक भी 90 हो जाएगा, दूसरा भी 90 हो जाएगा। अगर ये भी 90 हो जाता है, ये भी 90 हो जाता है, ये पैरेललोग्राम है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर बी 90 है तो बी भी 90 होगा, सी 90 है तो ए भी 90 होगा, इट मीन्स ईच एंगल इज 90 डिग्री। सो इन द नटशेल हमें क्या करना है, हमें कोई दो एडजेसेंट एंगल्स को इक्वल प्रूव करना है। अगर ऐसा कर लेते हैं देन वी कैन प्रूव इट अ रेक्टेंगल। तो इन दो एंगल्स को, कोई भी दो एंगल्स को 90 डिग्री प्रूव करने के लिए हमें वो दो ट्राइंगल्स कंसिडर करनी पड़ेंगी जिनमें ये दोनों एंगल्स फॉल करते हैं, एक चीज़। और दूसरी कंडीशन ये है, डायगोनल्स इक्वल है तो हमें वो दो ट्राइंगल्स कंसिडर करनी है जिनमें एक ट्राइंगल में एक डायगोनल, दूसरी ट्राइंगल में दूसरा डायगोनल फॉल कर जाए। ये दो एंगल्स भी फॉल करने चाहिए, डायगोनल्स भी फॉल करने चाहिए। तो मैं ये दो ट्राइंगल्स ले लेता हूँ, ए बी सी एंड देन ये आप बना सकते हैं बी सी डी। मैं इन दो ट्राइंगल्स को यहाँ कंसिडर करूँगा, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी सी। इन दो ट्राइंगल्स में यहाँ क्या है हमारे पास, इस ट्राइंगल वी नो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। यही अगर कंसिडर करूँ ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होंगी, अपोजिट साइड्स इक्वल भी होंगी। आप देख रहे हैं इस ट्राइंगल में ए बी साइड, इस ट्राइंगल में डी सी साइड, ए बी एंड डी सी आर इक्वल, व्हाई अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। आफ्टर दैट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो AC and BD, these are equal given in question. AC is equal to BD, BC is common to both. Now S से ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे एक ट्राइंगल में AB equal to DC, these are opposite sides of parallelogram. These two are opposite sides of parallelogram. Then AC equal to BD. AC is equal to BD. This one is given. Third, BC is equal to BC, common. ये भी equal हो गए. Now three parts are equal. Therefore, triangle ABC is congruent to triangle BCD by S congruency. इसको इरेज करूंगा यहाँ से। एक कॉन्सेप्ट और समझ लें, उसके बाद इरेज कर देंगे। ए बी सी, अभी आपने देखा ए बी एंड डी सी आर इक्वल। जब ए बी और डी सी इक्वल हैं, आप देख रहे हैं ए बी के सामने एंगल सी और डी सी के सामने एंगल बी, इट मीन्स ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे सी पी से। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा देयरफॉर एंगल, इस एंगल का नाम ए सी बी, ए सी बी इज इक्वल टू इसके सामने इस एंगल का नाम डी बी सी। These two are equal, CPCT, corresponding parts of congruent triangles. आप देख रहे हैं ACB, this one, and DCB, DCB. हम ये दो लेंगे, डायगोनल्स इक्वल है, इस डायगोनल के सामने ये एंगल और इस डायगोनल के सामने ये एंगल, इसका नाम है DCB. These two angles are equal now. अगर आप ए बी सी डी यहाँ देखते हैं, जो कॉन्सेप्ट हम लेके चल रहे थे ए बी सी डी सी बी,
these two angles are equal now, but AB is parallel to DC. अगर AB और DC पैरेलल हैं तो इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, बट एंगल ACB प्लस एंगल DCB इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन देना है, वाई? बिकॉज AB इज पैरेलल टू DC. अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इन दोनों एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री. नाउ दीज टू आर इक्वल, दोनों इक्वल भी हैं, दोनों का सम 180 है. अगर दोनों इक्वल है तो इट मीन्स एक भी 90 होगा, दूसरा भी 90 होगा. ACB इक्वल टू DCB इक्वल टू 180/2, दैट इज 90 डिग्री. एक एंगल भी 90, दूसरा एंगल भी 90. ये भी हमने 90 प्रूव कर दिया, ये भी 90 प्रूव कर दिया. अब जब ये 90 है तो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल. अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा. मैं लिखूंगा सिंस ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल. ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे. इस एंगल का नाम ABC, इसका नाम ABC, और इसके इक्वल इसका ऑपोजिट एंगल D, दैट इज ADC. अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा. एंड उसके बाद इस एंगल का नाम DCB इज इक्वल टू इसका ऑपोजिट एंगल दिस वन DAD 90. यहाँ हमने क्या प्रूव किया? वी वर गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD. हमें एक पैरेललोग्राम गिवन था, हमें प्रूव करना था कि ये पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल है. तो ये याद रखना है आपको, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में काफ़ी सारी सिमिलरिटीज होती हैं. दोनों की अपोजिट साइड्स ऑलवेज ऑलरेडी इक्वल भी होंगी, पैरेलल भी होंगी. सो पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए सिंपली हमें क्या करना होता है, इसके हर एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर देना होता है. मतलब ये हुआ, इफ ईच एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 90 डिग्री देन द पैरेललोग्राम कैन बी सेड टू बी अ रेक्टेंगल. हमने प्रूव कर दिया ईच एंगल इज 90 डिग्री. दैट इज ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 90 डिग्री. हर एक एंगल कितने डिग्री हो गया? 90 डिग्री. Therefore, ABCD is a rectangle. It means our parallelogram ABCD is a rectangle. So this is your question number 2. एक बार फिर याद रखें कि इन क्वेश्चंस को क्रैम नहीं कर सकते. एक्सरसाइज में आगे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जिसमें एक एक क्वेश्चन में बार बार बहुत सारी ट्राइंगल्स को, दो ट्राइंगल्स के पेयर्स को हमें बार बार कॉन्ग्रुएंट करना होगा. सो क्रैम करके ये नहीं हो सकता. आपको बस ये देखना है कि हमें क्या प्रूव करना है, कैसे प्रूव करना है, क्या स्टेप्स लेंगे कि ये प्रूव हो जाए. हमें ABCD को रेक्टेंगल प्रूव करना था. सो पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए ईच एंगल शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री. हर एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव करने के लिए हमें कोई दो एडजेसेंट एंगल्स, पास वाले एंगल्स को बोलते हैं एडजेसेंट. तो एडजेसेंट A और B हो सकते हैं, B और C हो सकते हैं, कोई भी दो पेयर्स हो सकते हैं ऐसे. तो जब दोनों एंगल्स का सम 180 है, दोनों को इक्वल प्रूव करना है. तो वो ट्राइंगल्स लेंगे जिनमें दोनों एंगल्स फॉल करते हो. एक ट्राइंगल में एक एंगल, दूसरे ट्राइंगल में दूसरा एंगल. डायगोनल्स पर गिवन इक्वल. सो हमें वो दो ट्राइंगल्स कंसिडर करनी थी जिसमें एक ट्राइंगल में एक डायगोनल, एक में दूसरा डायगोनल फॉल कर जाए. जब ये प्रूफ हो गया, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर आल्सो इक्वल. जब एक 90 है, इसका अपोजिट भी 90. दिस वन इज 90, इट्स अपोजिट एंगल इज आल्सो इक्वल टू 90 डिग्री. दैट इज each angle of parallelogram ABCD is equal to 90 degree. Hence we can say parallelogram ABCD is a rectangle. So this is question number 2 of exercise 8.1. Chapter is quadrilaterals. Thank you.